नमस्ते बच्चों। पिछली क्लास में हमने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग एरे पढ़ा। इन दिस क्लास we are going to implement a queue using linked representation or in using dynamic memory allocation. So as we have already implemented stack using linked representation, we are familiar with many of the concepts which are used here. So first of all, you will use the files or include the files in your program. So which files you will be including? stdio.h, conio.h and alloc.h. So this file alloc.h in NC standard on Turbo C etc. it must be alloc.h only, but some other compilers also may allow you malloc.h, malloc.h. Then you will create your structure of node. So this node structure is same as we used in stack. So struct node integer info and struct node pointer next. So this is template for the structure of a node. Then you will use the declare the global variables. So global variables, we will use two global variables, front and rear. So both of them are pointers pointer to a node. So we will declare them struct node pointer front equals to null and struct node pointer rear equals to null. जैसा हमने स्टैक में टॉप लिया था वैसे क्यू में हमको दो लेने हैं, फ्रंट और रियर. फिर फंक्शन प्रोटोटाइप्स, तो हम तीन फंक्शन लिखने वाले हैं, एन क्यू, डी क्यू एंड डिस्प्ले. एन क्यू मीन्स इंसर्शन इन क्यू, डी क्यू मीन्स डिलीशन फ्रॉम द क्यू and void display, so display the queue. So these are the function prototype. Then we will create menu in the main function. So you will write the main function. I'm not discussing these things in detail because you have already done these things in stack program and I have explained there how to create a menu. Now the important thing is we want to learn how to write enqueue function, dequeue function and display function for a queue. So let us learn how to insert into a queue. So whenever you want to insert something, you need to create a new node. So here a new node ptr is created. Now how to create, that is again a question. So how to create, you will declare a pointer and you will allocate memory to it. You will read this value. You will put null here. In this way, this new node can be created. So once this node is created and assume that this is a queue already there. So in this queue, this is the last node rear. Then this is linked to this 13 node and 40 and this 20. And this is the first node of queue front. So this is, we are assuming, suppose that there is a queue already existing like this and then there is a new node. So how to add this new node into this? So you see here this portion which I have shaded is what we will call it. This is ptr next portion because ptr has two portion, ptr info and ptr next. So this is ptr next portion. So in this ptr next portion we will assign rear because rear is pointing to 72, this node. So rear is pointer or address of this node which is holding value 72. So we will put ptr next equals to rear. So if we will write this statement, this link will be established. So this will be connected with this. अब यहाँ पे नल नहीं रहेगा, अब यहाँ पे 72 वाले नोड का एड्रेस आ जाएगा. क्यों? क्योंकि वो एड्रेस पहले रियर में था और आपने ये लाइन लिखी ptr next equals to rear. And then you will put this rear on the last node. So this is now last node. So rear equals to ptr. So these two statements will link this new node into this already existing queue. So before we write the code for insertion of a new node into a queue, let us see
What are the special cases in case of insertion? One case you need to see if front equals to null and rear equals to null. Then if both of them are null, then you will create a new node like this. So PTR is pointing to this. Then what you are going to execute to link this, you are going to execute these two statements, PTR next equals to rear and rear equals to PTR. So these two statements are used here also. So let us see if front equals to null and rear equals to null. That means this is the first node. In that case also, these two statements will work properly. There will be no problem at all, because if you write PTR next equals to rear and rear is null, so null will go here. And you will write rear equals to PTR, so rear will come to point this new node. So this is the first node. So this is the only node when initially front and null rear are null. This is the only node which is added. Now only thing is, where is front now? So one node is added and front is null. That is not right. So we need to set front equals to PTR. So there is only one special case in insertion, that when front and rear were null and new node was inserted, these two statements are okay, but one more statement, front equals to PTR, we need to run. By doing this, both front and rear will point to this new node, because this is the only node in queue. So both the pointers front and rear will point to the same node. एक लाइन में एक ही व्यक्ति है तो वही सबसे आगे और वही सबसे पीछे माना जाएगा ना, उसी तरह की ये बात है। तो अब आप देखें इसका कोड एन क्यू का। देखो, जब भी आपको इंसर्ट करना होता है, सबसे पहले काम होता है एक नया नोड बना तो लें, फिर उसको जोड़ देंगे। तो बनाते कैसे हैं, मैंने आपसे स्टैक के टाइम बोला था कि ये 4-5 जो लाइनें हैं बनाने की, ये आपको हर जगह काम आएगी। लिंक लिस्ट में भी नया नोड बनाएंगे, इंसर्शन से पहले नया नोड तो बनाना पड़ेगा, तो वो नया नोड बनाएंगे, वो ऐसे ही बनेगा। क्यू में भी ऐसे ही बनता है, स्टैक में भी ऐसे ही बनाया था। तो सबसे पहले स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर पी टी आर इक्वस टू नल, मैंने एक पॉइंटर ले लिया है। देन पी टी आर इक्वस टू, अब ये है मेमोरी एलोकेशन स्टेटमेंट। हाउ टू राइट दिस, यू नीड टू properly learn this struct node pointer. So type of this pointer, struct node pointer malloc. Malloc is the function size of struct node. So size of struct node, this will allocate memory to a new node, and that new node will be pointed by ptr. और इस ptr के कितने भाग होंगे, दो, ptr info, ptr next. सो ptr info में वैल्यू डालना है, यूजर से पूछिए एंटर द वैल्यू scanf %d and ampersand ptr info. So this %d because स्ट्रक्चर में हमने इसको इंटीजर लिया है इन्फो को, एंड देन ptr नेक्स्ट इक्वल्स टू नल। तो ये जो 4-5 लाइनें हैं, इनसे एक नया नोड बन जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ रखा था कि ये नोड नया वाला बना हुआ है, और मान रहे थे कि ये क्यू बनी हुई है, तो इस क्यू में ऐड करना है बस। अब ये बन तो गया, अब इसको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए दो स्टेटमेंट बताए थे मैंने, ये वाले, पी टी आर नेक्स्ट इक्वस टू रेयर, रेयर इक्वस टू पी टी आर। तो इन दोनों से कैसे ऐड होता है, आप डायग्राम से इसको समझ लें। पी टी आर नेक्स्ट इक्वस टू, ये पी टी आर है, इसका नेक्स्ट ये है, इक्वस टू रेयर लिखने से ये लिंक बन जाएगा, ये इससे ऐड हो जाएगा। एंड रेयर इक्वस टू पी टी आर लिखने से सबसे लास्ट वाले इस वाले नए नोड पे ही रेयर भी आ जाएगा। सो इन दिस वे यू कैन ऐड। अब अगर इस इंसर्शन ये पहला ही पहला नोड है, तो उस केस में हमको फ्रंट को भी पीटीआर सेट करना है। तो इफ फ्रंट इक्वल्स टू नल, यानी ये इंसर्शन करने के बाद भी फ्रंट नल ही पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये पहला पहला नोड था। देन यू विल ऑल्सो सेट द फ्रंट इक्वल्स टू पीटीआर। सो इफ फ्रंट इक्वल्स टू नल, फ्रंट इक्वल्स टू पीटीआर, ये भी आपको करना है, तब जाके इंसर्शन का काम पूरा होगा। तो गेट सी एच एंड दिस फंक्शन इज क्लोज्ड। तो इस तरह से करके आप एक क्यू में इंसर्शन का काम कर सकते हैं। नाउ आई हैव पुट अ नोट हेयर, ये आपकी थिंकिंग सोचने के लिए दिया है। इस इंसर्शन में, एन क्यू फंक्शन में क्यू में इंसर्ट करते वक्त मैंने ओवरफ्लो कंडीशन कंसिडर नहीं की है।
इसमें आप कहीं नहीं देख रहे कि इफ सच एंड सच कंडीशन हैपन्स देन दिस इज एन ओवरफ्लो. So why we are not considering overflow? Can you think about it? So you think because we are implementing using dynamic memory allocation, so continuous memory block is not required. Whenever we want to insert, we create a node. Wherever there is memory available, a node will be created. So when we implement using linked representation any data structure, overflow condition will not occur until unless your memory, physical memory is full. तो जब तक मेमोरी भर नहीं जाती तब तक आपको मेमोरी मिलती रहेगी जब आप मांगेंगे, क्योंकि आपने एडवांस में कोई एलोकेशन फिक्स नहीं किया है एरे की जैसे. तो एडवांस में एलोकेशन फिक्स करने से कंटिन्यूस ब्लॉक एक मेमोरी का आपको रिजर्व हो जाता है, और जब वो ब्लॉक भर जाएगा तो आपको ओवरफ्लो कहा जाता है. बट हियर व्हेन यू इम्प्लीमेंट यूजिंग लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन, मेमोरी जब तक खुद पूरी नहीं भर जाती, क्योंकि आपको अलग से कोई फिक्स अमाउंट अलॉट नहीं है, आपको जब जितना चाहिए होता है तब एक नोड की जितनी मेमोरी अलोकेट की जाती है, तो वो मेमोरी जब तक नहीं भर जाती ओवरफ्लो आएगा नहीं. सो ओवरफ्लो इज रेयर इन दिस केस, यानी कि बहुत कभी कभार ही आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं. आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू. देन वी कैन डिस्कस नाउ द DQ operation. DQ means we want to delete an item from the queue. See, if front, we will delete from front, so we will check if front is null, then this will be an underflow condition, right? So first of all, we should check if it is underflow, then deletion is not possible. And one more condition special you can check, if front and rear are equal. So if front and rear are equal, that means there is only one node, and that node also you want to delete. So after deletion, what will happen? What will be the value of front? What will be the value of rear? So if front and rear were equal, and you that tells you that there was only a single node, and that node also you have deleted, then set both front and rear to null. So keep in mind, when this condition happens after deletion, set both of them to null because queue is empty now. So these are two special case we need to see. But if these two cases are not there, ना तो क्यू खाली है और ना ही क्यू में केवल एक एलिमेंट है, तो इसका मतलब ज़्यादा एलिमेंट है, तब हम डिलीट कैसे करेंगे? तो अब आप हमेशा एक डायग्राम बना के समझें और फिर डिलीट करें. तो देखिए, मैंने क्यू का डायग्राम बनाया, इसमें 3 नोड हैं. एक ये सबसे लास्ट वाला रियर है, फिर ये एक नोड है 60, फिर ये है 50 और ये फ्रंट पे है. अब इसमें 3 होते चाहे 30 होते, कितने भी होते, हमको डिलीट हमेशा फ्रंट वाले को करना होता है. तो डिलीट हमेशा फ्रंट वाले को करना होता है. तो इसको डिलीट करने के लिए इससे जस्ट पहले वाला ये 60 जो इसमें दिख रहा है आपको, इसके नेक्स्ट में नल डालना है और इसको फ्री करना है. और फ्रंट कहाँ आ जाएगा? पीछे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा. तो अब बात यह है कि इसको डिलीट करने के लिए इसके पीछे वाले पे फ्रंट को लाना है और उसके यहाँ पे नेक्स्ट पोर्शन में नल डालना है और इसको फ्री करना है. तो हम क्या क्या काम करें? एक तो इसके पीछे वाले पे कोई पॉइंटर चाहिए. अब इस पीछे वाले का एड्रेस कहाँ है? वो तो इसके पीछे वाले में है. उसका एड्रेस कहाँ है? तो वो तो रियर में है. और अगर बहुत सारे नोड होते तो हमको इससे जस्ट पहले वाले का नोड का एड्रेस लाना है कैसे भी करके. तो हम एक पॉइंटर लेते हैं PT. देखो आप एड्रेस, इस पीछे वाले का एड्रेस कैसे आएगा? एक पॉइंटर लेते हैं PT. इस PT को अभी तो आपको ये यहाँ दिख रहा है, लेकिन ये PT सबसे पहले रियर पे लाएंगे अपन. तो PT इक्वल्स टू रियर, क्योंकि अपने पास सबसे लास्ट वाले का एड्रेस है और फिर हम नेक्स्ट 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 कूदते हुए आगे बढ़ते जाएंगे. तो देखो, मैंने PT इक्वल्स टू रियर एक स्टेटमेंट लिखा, यहाँ पे ये दिख रहे हैं आप. तो PT यहाँ आ गया. अब जब तक PT नेक्स्ट नॉट इक्वल टू फ्रंट, देखो PT नेक्स्ट का मतलब ये पोर्शन किसको पॉइंट कर रहा है? 50 वाले नोड को. और 50 वाले नोड का दूसरा एड्रेस और किस में है? फ्रंट में है. मतलब इसी नोड का एक और एड्रेस स्टोर है फ्रंट में.
तो वाइल पीटी नेक्स्ट नॉट इक्वल टू फ्रंट, जब तक पीटी का नेक्स्ट फ्रंट के बराबर ना हो जाए, मतलब पीटी नेक्स्ट भी 50 वाले को पॉइंट कर रहा है और फ्रंट भी 50 वाले को पॉइंट, दोनों बराबर हो गए, तब तक पीटी इक्वल टू पीटी नेक्स्ट। तो इस पीटी इक्वल टू पीटी नेक्स्ट से क्या होगा, जैसे अभी पीटी 30 वाले पे है, तो पीटी नेक्स्ट किसका एड्रेस है 60 का, तो पीटी में 60 वाले का एड्रेस आ जाएगा, फिर और ऐसे जंप करता जाएगा। तो अगर इसमें लाइन में 50 नोड भी जुड़े हुए होंगे तो भी पीटी को पहले आप रियर पे ले लो, और फिर वाइल पीटी नेक्स्ट नॉट इक्वल टू फ्रंट, तब तक पीटी इक्वल टू पीटी नेक्स्ट। तो ये लूप चलाएंगे, तो ये पीटी यहाँ, फिर इससे अगले वाले पे, और भी बीच में नोड होंगे तो अगले वाले पे जंप करते करते ये इस फ्रंट के जस्ट पीछे वाले नोड पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो पीटी यहाँ आ गया। अब एक बार पीटी यहाँ आ गया और एक एक्स्ट्रा नोड, एक पीटीआर और एक्स्ट्रा पॉइंटर ले लें, उसको फ्रंट पे लगा लें, पीटीआर इक्वल टू फ्रंट लिखने से यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अब ये जो अरेंजमेंट सेटलमेंट हो गया, इसके बाद डिलीट करना बहुत आसान है। कैसे कि आप लिखेंगे फ्रंट इक्वल टू पीटी, तो ये फ्रंट यहाँ आ जाएगा। आप लिखेंगे फ्री पीटीआर, तो ये फ्री हो जाएगा। फिर आप लिखेंगे फ्रंट नेक्स्ट नल, तो यहाँ नल आ जाएगा, तो ये हट जाएगा, इसकी मेमोरी भी फ्री हो जाएगी। तो कैसे लिखते हैं आप ये देखिए, एक बार पीटी और पीटीआर वगैरह सब अगर सही से सेट हो गए, तो उसके बाद आप आराम से ये सिंपल सिंपल स्टेटमेंट ये लिखें, फ्रंट इक्वल टू पीटी, तो क्या होगा, ये पीटी जहाँ है वहाँ फ्रंट आ गया, तो फ्रंट इस 60 वाले को पॉइंट करने लग जाएगा। पीटी नेक्स्ट इक्वल टू नल, तो ये पीटी नेक्स्ट का मतलब यहाँ पे नल, तो यहाँ नल आ जाएगा, यानी कि ये लिंक टूट जाएगा, फ्रंट भी इसको पॉइंट करने लग जाएगा। ये नोड हवा में झूलता रहेगा, फालतू में पड़ा रहेगा, बिना बात मेमोरी खराब करेगा, तो इसको फ्री कर देते हैं, पीटीआर को फ्री पीटीआर, तो फ्री पीटीआर लगा देंगे। अब आपने ये बातें समझ ली हैं, तो फिर आप आसानी से प्रोग्राम लिख सकते हैं डी क्यू का। देन यू कम हियर एंड सी द प्रोग्राम ऑफ डी क्यू। डी क्यू मैंने दो पॉइंटर लिए हैं, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर पीटीआर को फ्रंट किया है और स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर पीटी को रियर किया है। कैसे, ये वाली बातें कि पीटी को तो सबसे पहले रियर पे ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ाते जाएंगे, नेक्स्ट 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 करके वहाँ लाएंगे, इस फ्रंट वाले से जस्ट पहले वाले पे रोकेंगे, यहाँ पे इसको जंप करवा के, ये जो अपन ने सीखा था लाइनें, और पीटीआर को फ्रंट पे खड़ा कर ही लिया, पहले पहले फ्री करने में काम आएगा, ये फ्री करेंगे इसको। तो स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर पीटीआर को फ्रंट पे और स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर पीटी को रियर पे लिया। अब फ्रंट नल है, तब तो अंडरफ्लो कुछ करना ही नहीं है, सो वी विल से फ्रंट इक्वल टू नल देन अंडरफ्लो, एल्स एल्स अब डिलीट करेंगे एक नोड को। तो इफ फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिस्प्ले द वैल्यू, क्या डिलीट कर रहे हैं, तो प्रिंट है परसेंटेज डी डिलीटेड फ्रंट इन्फो, फ्रंट का इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवा दिया। अगर फ्रंट और रियर बराबर हैं तो इसका मतलब एक ही नोड है, हमने डिस्कस किया था, एक ही नोड है, तो क्या करना है, फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू नल, सबको नल कर दो, फ्रंट भी नल रियर भी नल, क्योंकि उस नोड को हमने डिलीट करना है, उसको फ्री कर देंगे, क्योंकि उसके ऊपर पीटीआर है खड़ा हुआ, पीटीआर को फ्री करेंगे लास्ट में। और अगर फ्रंट और रियर इक्वल नहीं है, तब हमको वो सब काम करना है कि पीटी को जंप करवाना है। तो वाइल पीटी नेक्स्ट नॉट इक्वल टू फ्रंट, तब तक पीटी इक्वल टू पीटी नेक्स्ट। ये लूप में बस केवल एक ही लाइन है, ये वाली लाइन। तो पीटी आगे बढ़ता जाएगा, पहले शुरू में तो खड़ा था रियर पे, एंड देन इट विल कीप मूविंग एंड इट विल बी ऑन द सेकेंड लास्ट नोड, जो फ्रंट के जस्ट पहले वाला नोड है वहां पे आके रुक जाएगा पीटी। सो पीटी विल बी हियर, बस पीटी यहाँ सेट है, पीटीआर यहाँ सेट है, तो अब हम इसमें डिलीट मार देंगे। तो डिलीट कैसे करेंगे, फ्रंट को पीटी पे लाए, फ्रंट नेक्स्ट में नल डाल दिया, बस हो गया। अब केवल बचा कि वो जो नोड एक्स्ट्रा जिसको अपन ने हटा दिया, वो फ्री में हवा में लटक रहा है, उसको फ्री कर देते हैं, सो दैट वी विल यूज दिस स्टेटमेंट फ्री पीटीआर। तो फ्री पीटीआर करने के बाद वो फ्री हो जाएगा, फिर गेट सी एच लगा के और आपका डी क्यू फंक्शन बन। सो इन एग्जामिनेशंस there can be a short answer type question, what is use of free statement, free. So the formal answer to this is the free statement is used to deallocate memory allocated by malloc statement. So memory which was allocated using a malloc statement in your program is deallocated. Deallocated means वो मेमोरी वापस ले ली है। इसके बारे में मैं आपसे एक क्लास में अलग से और चर्चा करूंगा,
कि किस तरह से कभी कभी मेमोरी तो अलोकेट हो जाती है और उसका पॉइंटर गलती से नल हो जाता है, तो वो मेमोरी वहीं पड़ी रहती है, अपने किसी काम भी नहीं आती और अलोकेटेड रहती है। कभी कभी इसका उल्टा भी हो जाता है, किसी पॉइंटर में एक एड्रेस रह जाता है और उसकी मेमोरी डी अलोकेट हो चुकी होती है। तो वो सब क्या बातें हैं, उनके बारे में थोड़ा थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे। But today's purpose is to implement Q using linked representation. So you go through this NQ and DQ operation. Then display is quite simple because it is similar to the function which you use to display the stack. So I have taken this pointer ptr equals to rear. So if ptr equals to null, then we will give message q is empty. Else, while ptr not null, we will print the ptr info like this, and then ptr equals to ptr next. So ptr will keep jumping until unless it becomes null. So we are starting from the rear and printing the values one by one. So in this way, if there are these values in queue, rear is at this point last and this is front, then what you are doing, you are putting the ptr here. Initially, you are writing ptr equals to rear, so ptr will be pointing to this. Now your loop is printing ptr info, so 30 will be printed, and then ptr equals to ptr next, so that means it will jump to the next. So ptr will point to this. Now again printing the info, so 40 will be printed and jump to next. So next, now pointing to this. ptr info is printed and jump to next, so this will become null now. And when ptr will become null now, after 1 2 3 jumps using ptr equals to ptr next, then ptr will become null and this loop will be broken and display is over. So in this way you can display. So this is how you can implement a queue using a linked representation. So you do this work in your laboratory work also, you implement it, run it, this program. It will be easy for you to run it because you have already practiced stack to stack linked representation implementation. So I hope that you will be easily able to do this. So do this, gain some confidence, and there are a lot many things which we will be discussing in our upcoming classes. Thank you very much.